السلام علیکم ناظرین۔ سواریاں آپس میں باتیں کرنے لگی ہیں۔ کسی نے کہا کہ شاید آگے کوئی پل ٹوٹ گیا ہے، کسی نے کہا کوئی ٹکر ہو گئی ہوگی۔ اتنے میں کلینز مجھے واپس آتا نظر آیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، سردار آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ڈرائیور نے گالی دے کر پوچھا کہ کس چیز کی چیکنگ کر رہی ہے۔ کلینز بولا، کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی جاسوس بھاگ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اندر کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بظاہر میں بڑے اطمینان سے اپنے سیٹ پر بیٹھا رہا اور اپنے چہرے سے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ میرے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے۔ اب مجھے وہاں سے بھاگنا تھا۔ ایک دم اٹھ کر بھاگنے سے لوگوں کو مجھ پر شبہ ہو سکتا تھا اور وہ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے تھے۔ میں ایک آدھ منٹ بظاہر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے یوں ہی ٹٹولا اور ساتھ والی سواری سے پوچھا، پاجی آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ سواری نے نفی میں سر ہلایا تو میں یہ کہہ کر نیچے اتر گیا، کہیں سے ماچس تلاش کرتا ہوں، سگریٹ پینے کو جی چاہتا ہے۔ میں بس سے اتر کر 2 قدم چل کر آگے گیا، پھر رک کر اسے دیکھنے لگا جیسے مجھے کسی پان سگریٹ کے کھوکھے کی تلاش ہو۔ اس کے بعد ٹہلتا ہوا اگلی لاری کے پاس چلا گیا، وہاں سے ٹہلتا ہوا دوسری اور پھر تیسری لاری کے عقب میں آ گیا۔ کچھ سواریاں سڑک پر اتر رہی تھیں اور پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ فوجی یوں ہی جہاں چاہتے ہیں گاڑی کھڑی کروا کر چیکنگ کرنے لگتے ہیں۔ میں سڑک پار کر کے دوسری جانب جو درخت تھے ان کے نیچے آ گیا۔ سڑک کی دوسری طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، ان کے پیچھے کھیت تھے جو شام کے تیزی سے پھیلتے دھندرکے میں گم ہو رہے تھے۔ میں ٹہلتا ٹہلتا جھاڑیوں کے پیچھے آ گیا، جہاں ایک جگہ چھپ کر میں نے لاریوں اور دوسری گاڑیوں کی قطار کی طرف دیکھا۔ کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں دوڑ کر کھیتوں میں گھس گیا اور جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ دوڑنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ کنارے کے کھیتوں کی کٹائی شروع ہو چکی تھی اور وہاں مجھے کچھ کسان بھی نظر آ رہے تھے جو کٹی ہوئی فصل ایک طرف رکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے دور ہو کر آگے نکل گیا۔ میں جی ٹی روڈ کی سمت سیدھا جانے کی بجائے بائیں جانب مغرب کی طرف ہو گیا تھا تاکہ پولیس سے بچ سکوں۔ ہر لمحے گہرا ہوتا اندھیرا میری مدد کر رہا تھا۔ میں جب کچھ دور نکل گیا تو آگے آ کر میں دوڑنے لگا۔ میں چیکنگ کرتی پولیس کی پہنچ سے جتنی دور نکل سکتا تھا نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ کم بخاتبی سے پولیس نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں سیز فائر لائن عبور کر کے سیدھا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جاتا اور مجاہدین کے ساتھ مل جاتا، مگر میرے والد صاحب کو معلوم تھا کہ کشمیر میں مجاہدین کا سامنا بھارت کی تربیت یافتہ فوج سے ہے، اس لیے مجھے تھوڑی بہت فوجی تربیت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں کمال شاہ نامی تربیت یافتہ فوجی کمانڈو کے پاس جا کر کمانڈو کی باقاعدہ تربیت حاصل کروں اور اس کے بعد مجاہدین کشمیر میں شامل ہو کر انڈین فوج کے خلاف لڑوں۔ میری بھی اب یہی خواہش تھی۔ مجھے تو رائفل چلانی بھی نہیں آتی تھی اور کشمیر کے محاذ پر تو برین گن اسٹین گنوں کے ساتھ لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ مجھے ہینڈ گرنیڈ کا بھی پتہ نہ تھا کہ اس کا پن کھینچ لینے کے بعد اسے کتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں رکھ کر دشمن پر پھینکنا ہوگا۔ میرے لیے فوجی کمانڈو کی ٹریننگ بڑی ضروری تھی۔ میں فوجی کمانڈو بن کر کشمیر کے محاذ پر لڑنے اور دشمن کے ٹھکانوں پر شب خون مار کر اسے برباد کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن انڈین پولیس میرے راستے میں شدید رکاوٹ بن گئی تھی، بلکہ اس بات کا واضح خطرہ موجود تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میری جہاد میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے کی آرزو خاک میں مل سکتی تھی۔ انہی خیالات میں ڈوبا ہوا میں کھیتوں سے باہر نکل کر ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کنارے تیز تیز چل رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور کس شہر میں نکلوں گا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میں بھارتی پنجاب کی پولیس سے کافی دور نکل چکا تھا۔ رات کا اندھیرا کھیتوں اور میدانوں میں اتر رہا تھا۔ میں نے ندی کے کنارے ایک جگہ بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، تھوڑا سا آرام کیا۔ جب سانس ٹھیک ہو گیا تو ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ندی آگے جا کر اس طرف گھوم گئی تھی جدھر میرے اندازے کے مطابق جی ٹی روڈ تھی۔ چنانچہ میں نے ایک چھوٹی سی پلیا پر سے ندی عبور کی اور دوسری طرف ایک کھلی جگہ پر آ کر چلنے لگا۔ یہاں فصل کٹی ہوئی تھی، شروع میں ایک طرف کچھ درخت تھے۔ میں آگے نکل گیا، سوچنے لگا کہ آخر کب تک چلتا جاؤں گا، معلوم کرنا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں
और आगे कौन सा इलाका आ जाता है, मगर वहाँ मुझे कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं ये मालूम कर सकता। चलते चलते खेत ख़त्म हो गया और बंजर ज़मीन शुरू हो गई। यहाँ बैलगाड़ियों और माल मवेशी के गुजरने के लिए रास्ता सा बना हुआ था। एक जगह कुछ फासले पर बहुत से दरख्तों के झुंड नजर आए। उनके दरमियान किसी ने आग रोशन कर रखी थी। पहले मैंने सोचा कि वहां जाकर किसी से पूछूं कि ये रास्ता किधर जाता है। फिर ये सोच कर रुक गया कि इस तरह खामखा शक पड़ सकता है कि आखिर मैं कौन हूँ जो इस तरह बगैर जाने बूझे इस इलाके में क्यों फिर रहा हूँ। मैं दरख्तों के झुंड से हटकर आगे गुजर गया। आगे एक गांव की कुछ रोशनियां मुझे नजर आईं। मैं गांव की तरफ जाने की बजाय उसके पहलू से होकर आगे निकल गया। मुझे भूख लग रही थी। ख्याल आया कि गांव में जाता हूँ, ज़रूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया क्योंकि यह पाकिस्तान का गांव नहीं था, हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया का गांव था। हिंदू सिखों का गांव था और उनकी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। अभी चंद कदम चला हूँगा कि अंधेरे में किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। भैंस के टकराने की आवाज़ आई। ये कोई भैंस थी जो दरख्त के साथ बंधी हुई थी और काली होने की वजह से मुझे अंधेरे में नजर नहीं आई थी। भैंस बैठी हुई थी, मुझसे ठोकर लगने के बाद उठ खड़ी हुई थी। मैं वहीं रुक गया और रात के अंधेरे में भैंस के जिस्म का जायजा लेने लगा। भैंस दो एक बार बोलने के बाद चुप हो गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और प्यार से चिपकारा। भैंस ने अपनी दुम हिलाई। मैं उसको जिस्म को प्यार करता रहा, फिर बड़े आराम से उसके जिस्म पर हाथ फेरता गया। हाथ फेरते हुए उसके नीचे बैठ गया और उसके थनों को प्यार से सहलाने लगा। मुझे खतरा था कि कहीं भैंस मुझे दौलती न मारे, क्योंकि ज़ाहिर है वो किसी और के हाथों की पली हुई थी। लेकिन ये बड़ी शरीफ भैंस थी। इसने मुझे कुछ न कहा और मैं उसका दूध पीने लगा। पहले तो इसका दूध ना निकला, फिर मेरे हलक में नीम गर्म दूध की धारें लगीं। भैंस खामोश खड़ी रही। मैंने खूब जी भरकर उसका दूध पिया और प्यार की ज़बान में उसका शुक्रिया अदा करके चल पड़ा। मेरी भूख और प्यास मिट गई थी। मैं अब मैदान में से गुजर रहा था। रात का अंधेरा अब खूब गहरा हो गया था और अब सिर्फ इतना ही नजर आ रहा था कि मैं ज़मीन को देखकर चल सकता था। आगे एक और छोटा सा गांव आया। करीब ही एक गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे के दरवाजे पर बल्लभ रोशन था। अंदर से शब्द की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मुझे न इस गांव का पता था कि इसका नाम क्या है और न ये पता था कि आगे कौन सा गांव आएगा। मैं अंधेरे के समंदर में चला जा रहा था। दिल ने कहा कि यूं चलते जाना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वापस जलंधर पहुंच जाऊं। बेहतर यही है कि किसी जगह छुप कर रात बसर करूं। सुबह जब सूरज की रोशनी निकले तो फिर पता करूं कि लुधियाना शहर किस तरफ है और उस तरफ चलूं। मैं चलते चलते थक गया था। वहाँ या तो अंधेरे में धुंधले धुंधले खेत नजर आते थे या बंजर मैदान आ जाता था। रात बसर करने के लिए कोई ऐसा ठिकाना दिखाई नहीं देता था जहाँ अगर मैं सुबह तक सोता रहूं तो मुझे कोई देख ना सके। चलते चलते मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ बेशुमार दरख्त पास पास उगे हुए थे। ये आमों का कोई बाग था। अभी दरख्तों पर आम नहीं लगे थे। ये आमों का मौसम भी नहीं था। दरख्तों के नीचे बड़ा गहरा अंधेरा था। किसी कुत्ते ने मेरी बू सूंघ ली थी। दरख्तों की तरफ से उसके भौंकने की आवाज़ आई। मैं तेज तेज कदम उठाता आमों के बाग से आगे चलता गया। वहाँ दो चार दरख्त साथ साथ खड़े थे। मैंने सोचा इन दरख्तों के नीचे पड़कर रात गुजार दूंगा। आखिर मुझे ऐसी किसी जगह पर रात बसर करनी पड़ेगी। कोई बिस्तर चादर या कोई और शय मुझे मिल नहीं सकती थी। मैं इन दरख्तों के पास गया तो मुझे वहाँ ऐसी बू आई जैसे किसी ने लकड़ियाँ जलाकर बुझा दी हों। मैंने कोई ख्याल न किया और दरख्तों के नीचे जगह बनाकर बैठ गया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। रात को खुली जगहों पर ओस गिरने से ठंड हो जाती थी। इन दरख्तों के नीचे ठंड बिल्कुल नहीं थी। ओस भी नहीं गिर रही थी। मैंने एक जगह दरख्त से टेक लगा दिया। सोचा इसी तरह जितनी रात बाकी रह गई है गुजार दूंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। फिजा में जली हुई लकड़ियों की बू उसी तरह आ रही थी। मैंने यही ख्याल किया कि यहाँ गांव में किसी ने तंदूर जलाकर बुझा दिया होगा या लकड़ियों का अलाव रोशन किया होगा। मैं सीमेंट सिमटा कर दरख्त से टेक लगाकर आंखें बंद करके नींद दराज था और सिवाय नींद के और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझ पर कुछ देर बाद हल्की हल्की गनौदगी तारी होने लगी। मैं नींद की आगोश में ही था कि किसी चिमटी ने मुझे काटा और मैं एक झटके से उठ बैठा।
पतलून के अंदर हाथ डालकर पिंडली पर बैठी चिमटी को मसल दिया। मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मुझे किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोल दी और कान उस आवाज़ पर लगा दिया। साथ ही रात के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। आवाज़ किसी औरत की थी। वो रुक रुक कर कुछ बोल रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से बातें कर रही है, मगर जिससे वो बातें कर रही थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ रुक गई। 5-10 सेकंड के बाद औरत की आवाज़ फिर आने लगी। मेरे सामने 10-12 कदमों के फासले पर सरकंडों की झाड़ियाँ थीं। आवाज़ उन सरकंडों के पीछे से आ रही थी। मैं उस तरफ टिकट गई बांधे देखने लगा। अचानक सरकंडों के पीछे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ता से उठा और झुककर चलता हुआ सरकंडों की तरफ बढ़ा। मैं मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है। मैं सरकंडों के पास होकर बैठ गया और बड़ी एहतियात से 2-4 सरकंडों को हाथों से एक तरफ हटाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ मुझे छोटी सी इंसानी खोपड़ी नजर आई, जो जमीन से 1-2 फुट ऊंची थी। उस चबूतरे के एक जने मिट्टी का दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में मैंने एक औरत को देखा, जो दोनों हाथ जोड़कर मुंह में कुछ पढ़ते पढ़ते हुए चबूतरे का चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा कि यह जरूर कोई चुड़ैल या भूत प्रेत है, मगर औरत का जिस्म और आवाज़ चुड़ैलों जैसी नहीं थी। मैं ये सोचकर वहीं छुप कर बैठा रहा कि मालूम करना चाहिए कि यह औरत यहाँ क्या करने आई है। औरत पर दिए की रोशनी पड़ रही थी। जब वो दिए की रोशनी के करीब से गुजरी तो मुझे उसकी शक्ल भी नजर आ गई। औरत जवान थी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। सिर्फ लंबे बाल शानों पर खुले थे। चबूतरे पर मुझे दिए की हल्की हल्की कुछ जली बुझी लकड़ियां पड़ी नजर आ रही थीं। औरत चबूतरे के गिर्द कुछ चक्कर लगाने के बाद रुक गई। वो मुझसे बमुश्किल 5-6 कदमों के फासले पर थी। वो जलती हुई चिराग के पास बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने पढ़ना बंद कर दिया था। 3 बार हाथ बांधकर चबूतरे की तरफ झुकी। फिर उसने पहले अपनी कमीज उतारी, इसके बाद शलवार भी उतार दिया कि अब वो मेरे सामने बिल्कुल उरी हालत में खड़ी थी। मुझ पर पहला असर ये हुआ कि मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर ख्याल आया कि पता तो लगे कि ये औरत आधी रात को इस वीरान जगह पर चिराग लेकर क्या करने आई है। मैंने सर घुमाकर औरत की तरफ देखा। उस वक्त वो एक छड़ी से चबूतरे की जली हुई टहनियों को खरीद रही थी। यह क्या माजरा है, कहीं वह की कोई चुड़ैल न हो, मेरे दिल में ख्याल आया। मगर अब मैं इस मामले को हल करना चाहता था, वहाँ से डर कर भागना नहीं चाहता था। औरत ने छड़ी से लकड़ियों को राख को खरीदते खरीदते उसमें से कोई गोल सी चीज लकड़ी से उठाकर बाहर निकाली और उसको चिराग की लो के करीब लाकर गौर से देखने और धीमी आवाज में कुछ पढ़ने लगी। मैं ये देखकर वाकई डर गया कि ये एक जली हुई इंसानी खोपड़ी थी। औरत ने खोपड़ी को हाथ लगाया। खोपड़ी गर्म थी। उसने खोपड़ी को जमीन पर रख दिया। वो अपने साथ पानी का डब्बा भर कर ली थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े। खोपड़ी पर डब्बे में से 3-4 बार पानी डाला। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो उसे गोद में लेकर बैठ गई और यूं आगे पीछे हिलते हुए कुछ पढ़ने लगी, जैसे बच्चे को थपकियां दे रही हो। मैं अब सारी बात समझ गया था। ये मरगढ़िया शमशान भूमि थी, जहाँ हिंदू सिख अपने मुर्दों को जलाते थे। ये औरत वहाँ रात के वक्त चिल्ला काटने आई हुई थी। जाहिर है वो किसी करीबी गांव की औरत थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम आई। मैं सरकंडों में से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे देखकर औरत की चीख निकल गई। उसने जल्दी से खोपड़ी फेंकी और जमीन पर पड़ी हुई कमीज उठाकर अपने आगे कर लिया। मैंने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मगर जल्दी से कपड़े पहन ले। औरत ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए किसी को न बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा, तू यहाँ ये सब कुछ क्या कर रही थी और ये खोपड़ी किसकी है? औरत ने बताया कि वो एक हिंदू औरत है। 5 साल हुए उसकी शादी हुई, मगर औलाद नहीं हुई। किसी साधु ने उसे बताया कि अगर वो किसी कुंवारी लड़की के जले मुर्दे की खोपड़ी आधी रात को अपनी गोद में लेकर एक खास मंत्र का जाप करेगी तो गोद हरी हो जाएगी। चुनाचे ये औरत जो साथ वाले गांव की थी, वहाँ औलाद के लिए एक चिल्ला करने आई थी। उसे पता चला था कि शाम को उस गांव की एक कुंवारी लड़की मरी है और उसे जला दिया गया है। औरत मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं गांव में जाकर किसी के आगे जिक्र न करूँ, नहीं तो उसका चिल्ला भरशट हो जाएगा। मैंने उसे कहा, फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ खुद परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? औरत ने पूछा। मैंने कहा,
मुझे ये बताओ कि यह इलाका कौन सा है और लुधियाना को जाने के लिए मुझे किस तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी बस निकल गई थी और मैं खेतों में चलकर रास्ता भूल गया हूँ। औरत ने कहा, तुम बड़ी दूर निकले हो, यहाँ से आगे एक कस्बा चूलियाँ आएगा, वहाँ से कस्बा ब्यास को जाने वाले यक्के मिल जाते हैं। ब्यास से तुम रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना पहुँच जाना। वो एक बार फिर हाथ जोड़ने लगी, मेरा जिक्र किसी गैर आदमी से भी ना करना, नहीं तो मेरा औलाद की खातिर चिल्ला भरशट हो जाएगा। मैंने कहा, वादा करता हूँ मैं अपने किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। स्कीम मेरी यही थी कि इस सूरत से किसी ऐसे गांव या कस्बे के बारे में पूछा जाए जहाँ से मैं लुधियाना पहुँच सकूँ। चूँकि इस किस्म के चिल्ले घर वालों और गाँव वालों से छुप कर राजदारी के साथ किए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन था कि ये औरत मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर किसी को बताएगी तो वो सबसे पहले ये पूछेगा कि तुम आधी रात को गांव के बाहर क्या करने गई थी। मैंने औरत से इतना ज़रूर कहा कि इस किस्म के तहमत से कुछ नहीं हुआ करता। भगवान के आगे प्रार्थना करो, अगर भगवान की मर्जी हुई तो वो तुम्हारी गोद ज़रूर हरी कर देगा। औरत हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे हिंदू नहीं लगते, क्योंकि कोई हिंदू इस किस्म की बात नहीं कर सकता। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं हिंदू ही हूँ, बस वलायत का पड़ा हुआ हूँ, और इस किस्म के तहमत को मैं नहीं मानता। अब तुम वापस अपने घर जाओ। औरत ने चबूतरे पर जलता हुआ चिराग फूंक मार कर बुझा दिया और मेरे करीब होकर कहा, तुम इतनी रात गए कहाँ जाओगे, मेरे साथ क्यों नहीं चलते। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव जाऊँ और तुम्हारा खावंद और गाँव वाले मुझे पकड़ कर मरना शुरू कर दें। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी से मुझे महसूस हुआ कि ये औरत ठीक औरत नहीं है। इसका सबूत भी मुझे फौरन मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ, गाँव के बाहर एक कोठड़ी है, वहाँ चारपाई भी है, वहाँ तुम रात गुजार लेना। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया और उस औरत से कहा कि तुम अपने गाँव जाओ, मैं किसी अगले गाँव में जाकर रात बसर कर लूँगा। ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया। मैंने कुछ दूर जाकर वापस मुड़कर देखा। अंधेरे में मुझे वो औरत नजर नहीं आई। ज़रूर वो भी अपने गांव की तरफ रवाना हो गई होगी। अब मुझे चूलियाँ गांव की तलाश थी। रात के अंधेरे में तो मुझे यह गांव नहीं मिल सकता था। मैं एक बार फिर कोई ऐसा ठिकाना तलाश करने लगा जहां मैं रात गुजार सकूं। एक जगह खेतों में मुझे राहत का चाक दिखाई दिया। सितारों की रोशनी में मुझे इन चीज़ों के हवले साफ नजर आ रहे थे। यह राहत था मगर खामोश था, कोई वहाँ नहीं था। एक तरफ टूटा फूटा लकड़ी का तख्त पड़ा था, यह मेरे लिए तख्त से कम नहीं था। मैं उस पर फौरन लेट गया और इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मुझे शमशान भूमि वाली औरत का ख्याल आने लगा। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से इस जहन से झटक दिया। मेरा मिशन एक मुकद्दस जिहाद का मिशन था और मैं अपने जहन को नफसानी आलूदगियों से पाक रखना चाहता था। मैंने खुदा को याद किया, आंखें बंद की, मुझ पर गनौदगी तारी होने लगी। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। आँख उस वक्त खुली जब दो तीन कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए एक दूसरे के पीछे भागते करीब से गुजरे। मैं उठकर बैठ गया। अभी सूरज नहीं निकला था मगर आसमान पर सफ़ेद शहर फूट रहा था। मशरक़ की तरफ सितारों की चमक मांद पड़ रही थी और नीली रोशनी की झलकियाँ नमदार हो रही थीं। मेरे वहाँ से निकल जाने के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त था। अगर मेरी आंख दिन निकले खुलती तो इस बात का इम्कान भी था कि राहत पर कोई किसान बैल लेकर आ जाता। मैं उठा और जिस सिमत शमशान भूमि वाली औरत ने इशारा करके गाँव चूलियाँ का नाम लिया था उस तरफ चलने लगा। सूरज निकलने तक मैं गाँव के करीब पहुँच गया। खेतों में सिख हल चला रहे थे। एक आदमी सर पर फसल या चारे का गट्ठा रखे गाँव की तरफ जा रहा था। एक सिख को देखा जो खेत में पानी लगा रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने एक निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैं भी बेनियाजी से आगे गुजर गया। सामने से एक बूढ़ा लाठी टेकता चला रहा था। मैंने उससे पूछा कि चूलिया गाँव यही है। वो रुक गया और बोला, यही है। तुमने किससे मिलना है? मैंने कहा, नंबरदार साहब से मिलना है। मिल लूँगा, मेरा ख्याल है वो घर पर ही होंगे। यह कहकर मैं नमस्ते कहकर आगे चल पड़ा। मैं ठीक गाँव में पहुंचा था। गाँव की दूसरी तरफ कीकर के दरख्तों के नीचे कुछ यक्के खड़े थे। एक यक्के में दो औरतें, एक हिंदू लाला और एक सिख देहाती बैठा था। कोचवान भी सिख था। उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो दूर से आवाज़ दिया, बहू जी ब्यासा जाना है तो आ जाओ। ब्यासा से मुराद ब्यास गांव या ब्यास का कस्बा या शहर था। जो कुछ भी था मुझे वहीं जाना था। मैं यक्के में बैठ गया।
यक्का चल पड़ा। कोचवान ने मुझसे 3 रुपये किराया लिया। कोई 1.5 घंटे निहायत तकलीफदा सफ़र के बाद यक्के ने मुझे ब्यास नाम के कस्बे में पहुंचा दिया। अब तो ये कस्बा एक शहर बन गया है। उस वक्त ये एक कस्बा ही था। यक्का ब्यास नाम के रेलवे स्टेशन के बाहर अड्डे पर जाकर रुका था। मामूली से देहाती स्टेशन की इमारत जैसी कि हर जगह देहाती स्टेशनों की इमारत हुआ करती थी। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली है। वहाँ मुसाफिरों का कोई रश नहीं था। टिकट मेरे पास ही था। मैंने ट्रेन के बाहर बैठकर बंद मक्खन खाया और चाय पी। कुछ देर वहीं रुका रहा। फिर उठकर सिगरेटों वाले खोखे पर जाकर एक सिगरेट खरीदा। सिगरेट सुलगाया और स्टेशन के एक तरफ आ गया। गेट पर कोई टिकट चेक करने वाला नहीं था। प्लेटफार्म पर आ गया। ईंटों का प्लेटफार्म तकरीबन खाली पड़ा था। मैं एक बेंच पर खामोशी से बैठ गया। मेरी निगाहें माहौल का जायजा लेने लगीं। वहाँ पुलिस वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ हिंदू सिख मुसाफिर प्लेटफार्म पर अपनी गठड़ियाँ और ट्रंक रख कर बैठ गया। कहीं से एक टीटी भी आ गया। उसने रेलवे की वर्दी पहनी हुई थी। वो प्लेटफार्म पर इधर उधर फिरने लगा। इतने में पीछे की जानिब सिग्नल डाउन हो गया। गाड़ी आ रही थी। कुल्ली भी पहुंच गए थे। पैसेंजर ट्रेन छक छक करती आ गई। सारे डब्बे थर्ड क्लास के थे जो सवारियों से भरे हुए थे। मैं एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। गाड़ी ब्यास के उस स्टेशन पर 15-20 मिनट तक खड़ी रही। मेरी निगाहें प्लेटफार्म पर लगी रही। यही धड़का लगा था कि कहीं कोई पुलिस वाला मुझे तलाश करता वहां ना आ जाए, मगर कोई सिपाही दिखाई न दिया। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बहुत बड़े दरिया पर से गुजरने लगी। मालूम हुआ कि यह दरिया ब्यास है। इसके बाद खुदा खुदा करके लुधियाना आया। यह काफ़ी बड़ा स्टेशन था। मैं डब्बे में ही छुप कर बैठा दिल में दुआएं मांग रहा था कि कोई पुलिस वाला इधर ना आ जाए। प्लेटफार्म पर मुझे 1-2 वर्दी वाले सिपाही नजर आए, मगर किसी ने मेरे डब्बे का रुख न किया। ट्रेन यहाँ कुछ देर तक रुकी रही। आखिर वो चली तो मेरी जान में जान आई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से एक तो वो हर स्टेशन पर रुकती थी और उसकी रफ्तार भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। चलती चली गई। लुधियाने के बाद कई छोटे छोटे स्टेशन है। फिर बड़ा शहर अम्बाला आ गया। यहाँ भी गाड़ी देर तक खड़ी रही। यहाँ से चली तो कहीं शाम के वक्त करनाल का बड़ा शहर आया। इसके बाद पानीपत और सोनीपत के शहर आया और वह भी गुजर गया। मालूम हुआ कि अब रोहतक का शहर आएगा और फिर गाड़ी दिल्ली पहुंच जाएगी। इस गाड़ी ने दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 9 बजा दिया। दिल्ली के स्टेशन पर उतरते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा वाले साहब के दोस्त जहीरुद्दीन साहब के पास पहुंच गया। वो मुझे देखकर हैरान भी हुए और मुझे डांटने भी लगे कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने एक फर्जी कहानी घड़ कर उन्हें सुना दिया। मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा खर्चा लगा हुआ था, मगर जितने दिन मुझे वहाँ ठहरने की इजाज़त थी उसकी मुद्दत गुजर चुकी थी। जहीरुद्दीन साहब कहने लगे, मियाँ, वीज़े की मुद्दत के बाद ठहरना जुर्म है। पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और मुझे भी परेशान कर सकती है। मैंने उन्हें कहा, अंकल आप परेशान ना हो, मैं कल वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। वो कहने लगे, मियाँ जाती दफ़ा तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस तुम्हें आज़ाद वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने पर वहीं पकड़ लेगी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने जो तू करके रात जहीरुद्दीन साहब के घर पर गुजारी। दूसरे दिन अपने कपड़े ड्राई क्लीन करे, नहा धोकर शेव वगैरह बनाई। जितने इंडियन करेंसी के नोट मेरे पास बाकी रह गए थे उनमें से कुछ रुपए एक पाँव की जुराब में छुपे, कुछ जैकेट की जेब में पासपोर्ट के साथ रख लिए। छोटा चाकू अभी तक मेरे पास ही था। ख्याल आया कि इसको यहीं कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि इसका अभी तक मुझे कोई मुसर्रफ नज़र नहीं आया था। फिर कुछ सोचकर उसे जेब में ही रहने दिया। जहीरुद्दीन साहब अपनी दुकान पर जा चुके थे। मैं भी कुछ देर बाद उनके मकान से निकल आया। अगरचा मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा लगा हुआ था, मगर जो कानूनी मुद्दत वहाँ क़याम की सहूलत हासिल थी वो पूरी हो चुकी थी और अब मैं गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रहा था और मुझे पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता था। मगर मैंने कोई परवाह न किया और सीधा रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। यह एक मोटर रिक्शा था और उस पर जर्द और नीला रंग किया हुआ था। स्टेशन पर मैंने अपनी गाड़ी के बारे में मालूम किया। इंक्वायरी क्लर्क हिंदू खातून थी जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उसने मुझे बताया कि दोपहर को एक गाड़ी मुंबई जाएगी। वो पैसेंजर ट्रेन है, इसलिए हर स्टेशन पर ठहरेगी। शाम के 6:15 बजे मुंबई एक्सप्रेस का टाइम है। यह रन थ्रो गाड़ी है। मैं पैसेंजर ट्रेन से तंग गया हुआ था। मैंने मुंबई एक्सप्रेस पकड़ने का फैसला कर लिया
उस औरत ने मेरे दरियाफ्त करने पर मुझे बताया कि यह ट्रेन दूसरे रोज़ दोपहर के बाद होशंगाबाद पहुंचेगी।